viewers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 13th of English, and the name of the chapter is The Ghosts in the Ruins. Right? So let us begin with the chapter and see कि हमें क्या बताया जा रहा है. Woo hoo hoo, cried the wind as it swept down from the Himalayan snows. कि वो वो करके जो विंड थी, जो हवा चल रही थी, उसमें आवाज आई फ्रॉम द हिमालयन स्नोज, यानी कि हिमालय के जो स्नोज थे वहां से जो विंड आई उसमें ये आवाज हमें सुनाई दी. It hurried over the hills and passes and hummed and moaned through the tall pines and deodars. कि वो हिल्स पर से आ रही थी, पास होती हुई, हम करती हुई, मोन करती हुई, पाइन ट्रीज के बीच में से और डियोडार्स के पेड़ के बीच में से. There was little on haunted hill to stop the wind. कि वहाँ पर थोड़ी सी haunted hill थी. There was a little haunted hill to stop the wind. वहाँ पर एक डरावना सा पहाड़ था जो कि उस विंड को रोक रहा था. Only a few stunted trees and bushes and the ruins of a small settlement. कि वहाँ पर सिर्फ थोड़े ही trees और bushes थे. And the ruins of a small settlement. यानी कि वहाँ पर एक छोटी सी जो बस्ती थी वो भी सब खराब हुई थी. On the slopes of the next hill was a village. कि उस स्लोप के next hill पर एक village यानी कि एक गांव था. People kept large stones on their tin roofs to prevent them from being blown off. Right? कि लोगों ने large stones उस roof पर रखे हुए थे, tin roofs पर, ताकि वो prevent कर सके from being blown off. Right? ताकि उन्हें बुझने से बचाया जा सके. There was nearly always a strong wind in these parts. वहाँ पर हमेशा जो हवा है वो बहुत ही तेज हुआ करती थी. 3 children were spreading clothes out to dry on a low stone wall, putting a stone on each piece. कि जो बच्चे थे वहाँ पर 3 बच्चे थे जो कि बाहर कपड़े फैला रहे थे सूखने के लिए एक लो स्टोन वॉल पर, और वो हर पीस पर एक स्टोन रख रहे थे ताकि वो कपड़े कहीं उड़ ना जाएं. 11-year-old Usha, dark-haired and rose-cheeked, struggled with her grandfather's long loose shirt. कि 11 साल की ऊषा जो थी, जिसके बाल बहुत ज़्यादा घने थे, चीक्स जो थे वो रोज रेड थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी अपने ग्रैंडफादर की उस बड़ी सी लूज शर्ट के साथ. Her younger brother Suresh was doing his best to hold down a bed sheet. कि उसका जो छोटा भाई था सुरेश वो बहुत ज़्यादा बेस्ट एफर्ट्स लगा रहा था ताकि वो उस बेडशीट को पकड़ सके. While Usha's friend Binya, a slightly older girl, helped. तभी उसकी उषा की जो एक फ्रेंड थी जो कि बिन्या थी, जो उनसे थोड़ी बड़ी थी, उसने उनकी हेल्प करी. Once everything was firmly held down by stones, they climbed up on the flat rocks and sat the sun bathing and staring across the fields at the ruins on Haunted Hill. Right? एक बार once everything was firmly held down by stones. एक बार सभी चीज जो है वो stones के through firm कर दी गई थी. They climbed up on the flat rocks. वो उन flat rocks पर उछलकर बैठ गए. And sat sunbathing, और वो वहाँ बैठकर सूरज की धूप को सेकने लगे. And staring across the fields at the ruins on Haunted Hill, और वो उस Haunted Hill पर जितने भी fields थी, जो ruins, जो खराब हुई हुई चीजें थी, उन्हें देखने लगे. I must go to the bazaar today, said Usha. Usha ने बोला कि आज मुझे बाजार जाना है. I wish I would come too, said Binya. बिन्या ने बोला कि मैं काश मैं भी तुम्हारे साथ बाजार चल सकती.
बट आई हैव टू हेल्प विद द काउस, पर मुझे काउस की देखभाल करनी है. आई कैन कम, said 8 years old सुरेश. अब सुरेश ने बोला कि मैं आ सकता हूँ तुम्हारे साथ. He was always ready to visit the bazaar, which was 3 miles away on the other side of the hill. वो हमेशा बाजार जाने के लिए रेडी रहता था, जो कि उनके घर से 3 मील की दूरी पर था, एक पहाड़ी के पीछे. राइट? No, you can't, said Usha. You must help grandfather chop wood. अब उषा ने बोला नहीं नहीं तुम नहीं चल सकते हो, तुम्हें ग्रैंडफादर की हेल्प करनी चाहिए ताकि वो लकड़ियों को काट सके. Won't you feel scared returning alone? He asked. उसने पूछा कि क्या तुम्हें अकेले वापस आते हुए डर नहीं लगता? There are ghosts on haunted hill. कि उस haunted hill पर बहुत सारे ghosts हैं, भूत हैं. I'll be back before dark. Ghosts don't appear during the day. अब उषा ने बोला कि मैं तो अंधेरे से पहले वापस आ जाऊंगी और घोस्ट जो है वो दिन के टाइम पर दिखाई नहीं देते हैं. Are there lots of ghosts in the ruins? asked बिनिया. अब बिनिया ने पूछा कि क्या उस खराब सी जगह पर बहुत सारे घोस्ट हैं, बहुत सारे भूत हैं. Grandfather says so. He says that over 100 years ago, some Britishers lived on the hill. अब ग्रैंडफादर ने भी यही बताया. उन्होंने बताया कि लगभग 100 साल पहले कुछ ब्रिटिशर्स उस हिल पर रहा करते थे. बट द सेटलमेंट वॉज ऑलवेज बीइंग स्ट्रक बाय लाइटनिंग. पर वहाँ का जो सेटलमेंट था वो हमेशा बिजली की वजह से खराब हो जाता था. सो दे मूव्ड अवे. इसीलिए वो लोग वहाँ से चले गए. बट इफ दे लेफ्ट, Why is the place visited by ghost? पर अगर वो वहाँ से चले गए थे तो फिर ये जगह ghosts जो है वहाँ पर क्यों आते हैं उस जगह पर? Because grandfather says, during a terrible storm, one of the houses was hit by lightning and everyone in it was killed, even the children. अब उन्होंने कहा क्योंकि ग्रैंडफादर ने बताया कि वहाँ पर एक बहुत ही बुरा तूफान आया था और उनमें से एक घर पर बिजली जो है वो गिरी थी और उस बिजली की वजह से घर में जितने भी लोग थे वो सभी मर गए थे. यहाँ तक कि वो जो बच्चे थे वो भी बिजली गिरने के कारण वहाँ पर मर गए थे. How many children? उसने पूछा कितने बच्चे थे? 2. A boy and his sister. अब उन ग्रैंडफादर ने बताया 2 बच्चे थे, एक बॉय और एक उसकी बहन. Grandfather saw them playing there in the moonlight. Grandfather ने उन्हें वहाँ उस moonlight में खेलते हुए देखा था. Wasn't he frightened? No, old people don't mind ghosts. अब उन्होंने पूछा कि क्या grandfather डरे नहीं उन्हें देखकर वहाँ पे? नहीं, क्योंकि बुरे लोग जो बड़े लोग होते हैं वो घोस्ट से इतना नहीं डरते हैं. Usha set out for the bazaar at 2 in the afternoon. उषा जो है वो बाजार के लिए दोपहर को 2 बजे घर से निकल गई. It was about an hour's walk. The path went through yellow fields of flowering mustard, then along the saddle of the hill and up straight through the ruins. अब लगभग 1 घंटा हो गया था उषा को चलते चलते और वो रास्ते में बहुत सारे येलो फील्ड्स पड़ी, फ्लावरिंग मस्टर्ड की यानी सरसों के जो फूल थे वो वहाँ पर दिखाई दे रहे थे. और देन along the saddle of the hill and up straight through the ruins, right? और उसके बाद वो सीधा सीधा पहाड़ पर चढ़कर जब गई तो वहाँ पर वो ruins यानी उसी खराब से खंडर से जगह के पास पहुँच गई. Usha had often gone that way to shop at the bazaar or to see her aunt who lived in the town nearby. कि उषा यूजुअली उस रास्ते से जाती रहती थी उस शॉप पर जाने के लिए जो कि बाजार में थी या फिर अपनी आंट के घर जाने के लिए जो कि वहीं पर पास में रहती थी. Wildflowers bloomed on the crumbling walls of the ruins and a wild plum tree grew straight out of the floor of what had once been a hall. अब जो वाइल्ड फ्लावर्स थे वो वहाँ पे खिल रहे थे उन क्रम्बिंग वॉल्स पे
रुइंस की, यानी कि जब दीवारें ज़्यादा खराब हो जाती हैं तो उनमें से भी फूल पत्तियां उगने लगती है। तो सेम इसी तरीके से वहां पर भी हो रहा था। एंड अ वाइल्ड प्लम ट्री, और एक बहुत बड़ा सा प्लम ट्री भी वहां से सीधा उग रहा था फ्लोर पर से, और विच हैड वंस बीन अ हॉल, जो कि एक टाइम पर एक हॉल हुआ करता था उस घर का। इट वॉज कवर्ड विथ सॉफ्ट वाइट ब्लॉसम्स, वो कवर्ड हुआ था कुछ वाइट सॉफ्ट ब्लॉसम्स से। लिजर्ड्स स्कटल्ड ओवर द स्टोन्स, वहां पर जो पत्थर थे उनके ऊपर लिजर्ड्स घूमती रहती थी। While a whistling thrush, its deep purple plumage glistening in the sunshine, sat on a windowsill and sang its heart out. Right? अब एक whistling sound, whistling thrush, यानी कि एक thrush is a kind of a bird जो कि वहाँ बैठकर उस विंडो पर एक सॉन्ग गाती रहती थी उस विंडोसिल पर बैठकर, राइट। उषा sang too, और उषा भी उसके साथ वहां पर गाने लगती थी। As she skipped lightly along the path, which dipped steeply down to the valley and led to the little town with its quaint bazaar. उषा भी वहां पर गाने लगी और स्किप्ड लाइटली अलोंग द पाथ, और वो अपने रास्ते के बारे में भूल गई कि उसे बाजार जाना था। विच डिप्ड स्टीपली डाउन टू द वैली एंड लेड टू द लिटिल टाउन विद इट्स क्वीन बाजार, वो अपने रास्ते के बारे में बिल्कुल भूल चुकी थी। मूविंग लेजरली उषा बॉट स्पाइसेस शुगर एंड मैचेस। अब वो मज़े मज़े में जब अपने बाज़ार की तरफ जा रही थी, वहाँ जाकर उसने बहुत ही आराम से बिना किसी हबड़ा दबड़ी के उसने वहाँ पर मसाले, चीनी या फिर मैचेस जो भी उसे खरीदना था वो सब उसने वहाँ खरीदा। विद द 2 rupees शी हैड सेव्ड फ्रॉम हर पॉकेट मनी, जो 2 रुपए उसने अपने पॉकेट मनी से बचाए थे, शी चोज अ नेकलेस ऑफ एम्बर कलर्ड बीड्स फॉर हरसेल्फ। उसने एक एम्बर कलर्ड बीड्स का नेकलेस था जो उसने अपने लिए लेने की सोचा। एंड सम मार्बल्स फॉर सुरेश, और सुरेश के लिए उसने कुछ मार्बल्स भी खरीदने चाहे। देन शी हैड हर मदर स्लीपर्स रिपेयर्ड एट द कॉबलर्स शॉप, और उसके बाद शी हैड हर मदर स्लीपर्स, उसने अपनी मम्मा के लिए स्लीपर्स ली, सॉरी उसने अपनी मम्मा की स्लीपर्स ली जो उसने कॉबलर की शॉप पर रिपेयरिंग के लिए दी थी। फाइनली उषा वेंट टू विजिट आंट लक्ष्मी एट हर फ्लैट अबव द शॉप्स, और आखिर में उषा जो है वो अपनी आंट लक्ष्मी के पास मिलने के लिए गई जो कि उन्हीं शॉप्स के ऊपर जो फ्लैट था उनमें रहा करती थी। They were talking and drinking cups of hot sweet tea when Usha realized that the dark clouds had gathered over the mountains. कि वो दोनों ही बातें कर रहे थे, चाय पी रहे थे, they were having hot and sweet tea. जब उषा को ये याद आया कि जो काले बादल हैं वो आसमान में छाने शुरू हो गए हैं, right? She quickly picked up her things, said goodbye to her aunt and set out for the village. कि वो तुरंत जल्दी से उठी, अपनी चीज़ें उठाई और उसने अपनी आंट को बाय बोला और जल्दी से अपने घर के लिए निकल गई। Strangely, the wind had dropped. अब अचानक से जो हवा है वो चलनी शुरू हो गई, सॉरी जो हवा है वो चलनी बंद हो गई थी, राइट। द ट्रीज वर स्टिल, द क्रिकेट्स वर साइलेंट। अचानक से जो पेड़ हैं वो हिलना बंद हो गए थे, क्रिकेट्स जो वहाँ पर आवाज़ आती रहती है कुछ इंसेक्ट्स की वो भी आनी बंद हो गई थी। द क्रोज फ्लू राउंड इन सर्कल देन सेटल्ड इन एन ओक ट्री, कि जो क्रोज थे वो अचानक से गोल गोल सर्कल्स में घूम रहे थे और एक ओक ट्री पर उसके बाद वो जाकर बैठ गए। I must get home before dark, Usha thought Usha hurrying along the path. अब वो जल्दी जल्दी अपने रास्ते पर जा रही थी और उसके माइंड में सिर्फ ये था कि मैं अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाऊंगी। But the sky had darkened and a deep rumble echoed over the hills.
पर आसमान जो है वो बिल्कुल अंधेरा छा चुका था आसमान में, और एक बहुत ही डीप रंबल आवाज थी जो कि वहाँ पहाड़ों पे गूंजनी शुरू हो चुकी थी। ऊषा फेल्ट द फर्स्ट हेवी ड्रॉप ऑफ रेन हिट हर चीक। ऊषा ने फील किया कि एक बहुत ही मोटी सी रेन ड्रॉप थी जो उसके गाल पर आकर गिरी। होल्डिंग द शॉपिंग बैग क्लोज टू हर बॉडी, शी क्विकेंड हर पेस। कि उसने अपने शॉपिंग बैग को अपने बॉडी के और पास किया और वो जोर जोर से उसने भागना शुरू कर दिया। Until she was almost running, और वो तब तक अपनी स्पीड बढ़ाती गई जब तक कि उसने भागना शुरू नहीं कर दिया। The raindrops were coming down faster now, cold stinging pelts of rain. अब रेनड्रॉप्स जो थी वो और भी ज़्यादा तेज़ गिरने लगी और अचानक से बारिश होनी शुरू हो गई और बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। A flash of lightning sharply outlined the ruins of the hills. अब अचानक से बिजली कड़की और वो उस हिल पे जो खंडर था उसी पर जाकर दोबारा से गिरी। And then all was dark again. Night had fallen. और अचानक से अंधेरा हो गया दोबारा से, और अब रात जो है वो हो चुकी थी। I'll have to shelter in the ruins, Usha thought and began to run. अब ऊषा जो है उसे लगा कि उसे अब उस खंडर में ही थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी, और वो ये सोचते सोचते भागने लगी। Suddenly the wind sprang again. अचानक से हवा दोबारा चलनी शुरू हो गई। But she did not have to fight it. पर उसे उससे हवा से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। It was behind her now, helping her along up the steep path and onto the brow of the hill. कि अब वो जो हवा थी वो उसके पीछे थी, helping her along up the steep path and onto the brow of the hill. There was another flash of lightning. और अब दोबारा से एक lightning flash नजर आती है, followed by a peal of thunder. और वहाँ पर एक आवाज थंडर की भी सुनाई देती है। The ruins loomed before her, grim and forbidding. Right? जो ruins थे वो जो खंडर था वो अब उसके पीछे जाकर छुप चुकी थी। Right? Usha remembered part of an old roof that would give some shelter. अब ऊषा को एक पार्ट याद आया उस छत का जो कि शायद उसे थोड़ा सा शेल्टर यानी उसे कवरेज दे सकता था। It would be better than trying to go on. उसे लगा कि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना ज़्यादा बेटर होगा बजाय यहाँ से जाने के। In the dark, with the howling wind, she might stay off the path and fall over the edge of the cliff. कि उसे लग रहा था कि अंधेरे में अगर वो इस तेज हवा में चलेगी तो शायद उसका जो वो रास्ते में शायद कहीं गिर जाए, उसका पैर फिसल जाए या फिर उसको कहीं चोट लग जाए। वू 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 हाउल्ड द विंड। अब विंड में से अचानक से वही आवाज आनी शुरू हो चुकी थी। Usha saw the wild plum tree swaying its foliage thrashing against the ground. अब ऊषा ने देखा कि जो वाइल्ड प्लम ट्री था उसकी जो लीव्स थी उसने इधर उधर हिलना शुरू कर दिया था हवा की वजह से। राइट? और वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हिलने लगा था। She found her way into the ruins, helped by the constant flicker of lightning. कि उसने अपना रास्ता निकाला into the ruins, helped by the constant flicker of lightning. राइट? जो बिजली लगातार चमक रही थी तो उसने अपना रास्ता उस खंडर की तरफ के लिए ढूंढ लिया था। Usha placed her hands against the stone wall and moved sideways. कि ऊषा ने अपना हाथ स्टोन वॉल पर लगाया और वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही थी। Hoping to reach the shelter corner. उसे लगा था कि वो शेल्टर के कॉर्नर तक इस तरीके से आराम से पहुंच जाएगी। Suddenly her hand touched something soft and furry. अचानक से उसका हाथ किसी एक सॉफ्ट और बहुत ही फरी चीज पर लग गया and she gave a startled cry. और वो वहां पर रोने लगी।
right? Her cry was answered by another half snarl, half screech, as something leapt away in the darkness. अब उसकी जो ये रोने की जो चिल्लाहट थी वो एक्चुअली एक हाफ स्नार्ल हाफ स्क्रीच साउंड से कवर हुई और ऐसा लगा कि शायद कोई चीज अंधेरे में वहां से उठकर भागी है. With a sigh of relief, Usha realized that it was the cat that lived in the ruins. और एक गहरी सांस लेने के बाद उषा को ये रियलाइज हुआ कि वो एक कैट थी जो कि वहाँ रूइंस यानी कि वो उस खंडर में रहती थी. फॉर अ मोमेंट शी हैड बीन फ्राइटेंड, बट नाउ शी मूव्ड quickly along the wall until she heard the ruin drumming on a remnant of a tin roof. तो एक मोमेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, पर अब वो बहुत तेजी से वॉल के साथ चल रही थी जब तक उसे रेन ड्रमिंग की साउंड जो है वो टिन रूफ पर सुनाई ना दे जाए तब तक. क्राउच्ड इन अ कॉर्नर शी फाउंड सम शेल्टर. अब वो एक कॉर्नर में पहुंच गई थी और उसे वहां एक बैठने की रहने की जगह मिल गई थी. बट द टीन शीट ग्रोन्ड एंड क्लैटर्ड एज इफ इट वुड सेल अवे एनी मोमेंट. पर जो टीन शीट थी वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, इधर उधर हिल रही थी. ऐसा लग रहा था कि वो शायद किसी भी मोमेंट उखड़ कर गिर सकती है, उड़ सकती है. Usha remembered that across this empty room stood an old fireplace. अब उषा को याद था कि इस empty room के पास ही एक old fireplace है. Perhaps it would be drier there under the blocked chimney. कि उसे लगा कि शायद उस ब्लॉक्ड चिमनी के नीचे थोड़ा ज्यादा सूखा हुआ एरिया होगा. But she would not attempt to find it just now. She might lose her way altogether. पर अब वो उसे ढूंढने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे लगा अगर वो अब गई तो शायद वो अपना रास्ता भूल जाएगी. Her clothes were soaked and water streamed down from her hair. कि उसके कपड़े अब तक बिल्कुल भीग चुके थे और उसके बालों में से पानी गिर रहा था. Forming a puddle at her feet. और उसके पैरों पे बहुत ज़्यादा पडल यानी कि जो पानी था वो इकट्ठा हो चुका था. She thought she heard a faint cry, the cat again or an owl. अब उसने सोचा कि उसने दोबारा से एक फेंट क्राई सुनी है जो कि शायद किसी कैट या फिर किसी आउल की है. Then the storm blotted out all other sounds. और उसके बाद जो storm था उसने सभी sounds को और ज़्यादा blotted कर दिया. There had been no time to think of ghosts, but now that she was settled in one place, Usha remembered grandfather's story about the lightning blasted ruins. अब वहाँ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि वो बैठकर उन घोस्ट्स के बारे में सोचे. पर जैसे ही वो उस जगह पर बैठी उषा को उसके ग्रैंडफादर की जो स्टोरी थी, जो लाइटनिंग ब्लास्ट वाली स्टोरी थी, वो उसे याद आ गई. She hoped and prayed that lightning would not strike her. अब वो बैठकर सोचने लगी और दुआ करने लगी कि काश लाइटनिंग यहाँ ना गिरे. राइट. Thunder boomed over the hills and the lightning came quicker now. अब थंडर जो था, जो तूफान था, वो हिल्स के ऊपर ही मंडराने लगा और लाइटनिंग जो है वो और भी ज़्यादा तेज हो गई. Then there was a bigger flash. और अब बहुत जोर से जो फ्लैश थी वो नजर आई. And for a moment the entire ruin was lit up. और थोड़ी देर के लिए पूरा जो ruin था, जो खंडर था, उसमें लाइट छा गई थी. यानी कि वहां पर सब कुछ दिखने लगा था. A street of blue sizzled along the floor of the building. कि एक स्ट्रीट थी जो कि ब्लू सिजल्ड थी फ्लोर पे उस बिल्डिंग के. Usha was staring straight ahead, and as the opposite wall lit up, she saw crouching in front of the unused fireplace two small figures, children. अब जैसे ही उषा जो है वो सीधा देख रही थी, राइट, और जैसे ही लाइट जो है वो जली तो उसने सामने वाली दीवार पर दो क्राउचिंग
फिगर्स देखी, 2 स्मॉल फिगर्स देखी उस अनयूज्ड फायर प्लेस के पास जो कि 2 बच्चों की थी. The ghostly figures seemed to look up and stare back at Usha. अब वो जो 2 घोस्टली फिगर्स थी उन्होंने सर उठाकर उषा को देखना शुरू कर दिया था. एंड देन एवरीथिंग वाज डार्क अगेन. और फिर अचानक से दोबारा सब चीज अंधेरे के अंदर छिप गई. उषा's heart was in her mouth. अब उषा का जो दिल था वो बिल्कुल उसके मुंह में आ चुका था, यानी कि वो बहुत ज्यादा डर गई थी. She had seen without doubt 2 ghosts on the other side of the room. कि उसे कोई डाउट नहीं था कि उसने उन 2 घोस्ट को रूम के दूसरी साइड पर देखा है. She wasn't going to remain in the ruins 1 minute longer. और वो एक भी मिनट ज्यादा उस रूइन में नहीं छुपना चाहती थी. She ran towards the big gap in the wall through which she had entered. कि वो दोबारा से उसी बड़े से गैप की तरफ भागी जो दीवार में था, जिसके थ्रू वो रूइंस के अंदर आई थी. She was halfway across the open space when someone fell against her. अब वो आधे रास्ते जा ही चुकी थी उस ओपन स्पेस में जब उसे कोई उसे फील हुआ कि कोई उसके पीछे है. Usha stumbled, got up and again bumped into something. उषा खड़ी हुई. She again started to run up, but फिर से कोई चीज उसके आगे आ गई थी. She gave a frightened scream. उसके बाद उसने डर कर जोर से चिल्लाया. Someone else screamed. और फिर कोई और चिल्लाया, किसी और के चिल्लाने की आवाज आई. And then there was a shout. और उसके बाद एक चिल्लाने की आवाज आई. A boy's shout. एक लड़का चिल्लाया. And Usha instantly recognized the voice. और उषा ने तुरंत ही उस वॉइस को रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया. सुरेश, उषा, बिन्या. तो ये आवाजें सुरेश, उषा और बिन्या की ही थी. They fell into each other's arms, so surprised and relieved that all they could do was laugh and giggle and repeat each other's names. कि अब वो तीनों एक दूसरे को हग करने लगे जोर से, बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गए और बहुत ज़्यादा रिलीफ, यानी वो बहुत ज़्यादा शांत भी हो गए कि वो तीनों एक दूसरे को पहचान गए थे. और उसके बाद वो सिर्फ हंस रहे थे, गिगल कर रहे थे और एक दूसरे का नाम ले रहे थे. Then Usha said, I thought you were ghosts. और फिर उषा ने बोला कि मुझे लगा तुम लोग घोस्ट हो. We thought you were a ghost, said Suresh. सुरेश ने कहा हमें लगा कि तुम घोस्ट हो. Come back under the roof, said Usha. उषा ने बोला चलो जल्दी से रूफ के अंदर वापस आ जाओ. They huddled together in the corner, chattering with excitement and relief. कि अब वो तीनों ही वहाँ कॉर्नर में बैठ गए थे, बातें कर रहे थे एक्साइटमेंट और रिलीफ के साथ. When it grew dark, we came looking for you, said बिन्या. बिन्या ने बताया कि जब अंधेरा हुआ तो हम तुम्हें ढूंढने के लिए आए थे. And then the storm broke. और उसी के बाद तूफान आ गया. Shall we run back together? asked Usha. उषा ने बोला कि क्या हम सभी को एक साथ दौड़कर वापस चले जाना चाहिए. I don't want to stay here any longer. उसने बोला कि मुझे यहाँ और ज़्यादा देर नहीं रुकना है. We'll have to wait, said बिन्या. बिन्या ने बोला पर हमें यहाँ वेट करना पड़ेगा. The path has fallen away at one place. It won't be safe in the dark in all this rain. कि जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है एक जगह पर और ये बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा अगर हम इतने अंधेरे में और इतनी बारिश में वहाँ से होकर गुजरेंगे. We'll have to wait till morning, said सुरेश. And I am so hungry. अब सुरेश ने बोला कि हमें यहाँ पर सुबह तक का वेट करना होगा और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है. The storm continued, but they were not afraid now. अब जो स्टॉर्म था वो बहुत ज़्यादा तेज़ था, चल रहा था, पर अब वो तीनों बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे.
दे गेव ईच अदर वार्मथ एंड कॉन्फिडेंस। वो तीनों ही एक दूसरे को क्लोज क्लोज होके बैठे हुए थे, तो उनकी जो वार्मथ थी, उनका जो कॉन्फिडेंस था, वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। इवन द ruins डिड नॉट सीम सो फॉरबिडिंग। और अब जो वो खंडर था, वो भी अब इतना ज्यादा डरावना नहीं लग रहा था। After an hour, the rain stopped and the thunder grew more distant. कि लगभग 1 घंटे बाद जो बारिश थी वो रुक चुकी थी, और जो थंडर यानी कि जो तूफान था, अब वो थोड़ा शांत हो चुका था। Towards dawn, the whistling thrush began to sing. कि अब जैसे ही सुबह हुई, तो वो जो whistling thrush यानी कि वो जो बर्ड थी, उसने गाना शुरू कर दिया था। Its sweet, broken notes flooded the ruins with music. कि उसकी जो स्वीट और बहुत ही प्यारी सी आवाज़ थी, उसने उस खंडर को गाने से भर दिया था। As the sky grew lighter, they saw that the plum tree stood upright again. जैसे ही जो स्काई था, वो वहाँ पर उजाला छाने लगा आसमान में, तो उन्होंने देखा कि जो प्लम ट्री था, वो भी अब सीधा खड़ा हो चुका था। Though it had lost all its blossoms, पर तूफान की वजह से उसके जितने भी फूल थे, वो सभी बिखर चुके थे। Let's go, said Usha. अब ऊषा ने बोला, चलो चलते हैं। Outside the ruins, walking along the brow of the hill, they watched the sky grow pink. अब जैसे ही वो लोग उस खंडर से बाहर निकले, तो उन्होंने हिल की तरफ देखा, और आसमान जो है, अब वो पिंक होना शुरू हो गया था। When they were some distance away, Usha looked back and said, "Can you see something behind the wall? It's it's like a hand waving." तो ऊषा पीछे मुड़ी और उसने बोला कि क्या तुम वो देख सकते हो? कुछ चीज़ वॉल के पीछे है, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना हाथ हिलाकर हमें गुड बाय बोल रहा हो। It's just the top of the plum tree, said Binya. उसने कहा कि वो सिर्फ उस प्लम ट्री का टॉप है, बिन्या ने बताया। गुड बाय दे हर्ड वॉइसेस, और उन्हें आवाजें भी सुनाई दी, गुड बाय। हु सेड गुड बाय? आस्क्ड ऊषा। ऊषा ने बोला, गुड बाय किसने बोला? नॉट आई, सेड सुरेश। नॉट आई, सेड बिन्या। अब सुरेश ने बोला, मैंने तो नहीं बोला, और बिन्या ने बोला, मैंने भी नहीं बोला। आई हर्ड समवन कॉलिंग ऊषा। ऊषा ने बोला कि मैंने किसी को सुना कि कोई मुझे बुला रहा है। इट्स ओनली द विंड, assured बिन्या। बिन्या ने बोला, ये कोई और नहीं, सिर्फ हवा है। ऊषा लुक्ड बैक एट द ruins. ऊषा ने दोबारा से उस खंडर की तरफ देखा। द सन हैड कम अप एंड वॉज टचिंग द टॉप ऑफ द वॉल। कि अब सूरज जो है वो पूरा उग चुका था, और वो अब ruins यानी वो जो खंडर था, उसकी वॉल्स पर आसानी से उसकी जो रोशनी थी, वो पड़ रही थी। कम ऑन, सेड सुरेश, आई एम हंग्री। अब सुरेश ने बोला, चलो जल्दी से आ जाओ, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। दे हरीड अलॉन्ग द पाथ टू द विलेज। और वो सभी लोग विलेज के पास जल्दी जल्दी निकलने लगे। गुड बाय, ऊषा heard them calling. Was it just the wind? अब दोबारा से गुड बाय आवाज सुनाई दी, और ऊषा ने दोबारा से उन्हें बोलते हुए सुना, और पर उसने पूछा कि क्या वो सिर्फ विंड थी, राइट? So that was all about the chapter. I hope you got very many things to learn from this, and you all were interested in this chapter. So that was all from my side. Thank you so much, and do have a great day ahead.